Hello everyone, how are you? Welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. This is Aishi ma'am. Today we are back with another new topic, which is statistics part 1. So for those who are new to this channel, let me give you a brief description about SwiftLearn. At SwiftLearn, we provide 100% live and interactive classes at the comfort of your home and according to your convenient timings. Here in a single batch, we have maximum of 6 students, so never more than 6 students. If you want, you can also opt for one-to-one tuition as well. At SwiftLearn, we will be providing you with a dedicated academic mentor team who is going to track your progress and is going to guide you throughout your journey. And we cover the syllabus as per the school exam schedule, and we handle custom requests as well. The key features of SwiftLearn includes, first thing is, at the end of every month, we are going to share a detailed progress reports with your parents. Here you can take unlimited practice tests, okay? Unlimited practice tests on various subjects. On every Sunday, you can go for the scholarship test of SwiftLearn, which is the SwiftLearn Academic Test Series, SATs. And here we not only cover objective questions, but subjective questions as well for your school exams. Sounds amazing? Go to the SwiftLearn website and book your free trial class and enjoy the art of learning. For those who are new to this channel, make sure to subscribe to our channel and make sure to hit on the bell icon as well, because on this channel we share a lot of knowledgeable, fun videos based on different subjects on various other topics. So it is really going to be helpful for you. Okay, let's begin. So we are starting with our statistics part 1. तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा? एक तो होगा डेटा का डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का क्या मतलब है, नंबर 1. नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बिल्कुल हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे. उसके बाद रॉ डेटा एंड वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा थ्रू सम एग्जांपल्स, ये भी हम लोग समझेंगे. उसके बाद हम लोग रिकॉल करेंगे व्हाट इज डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये भी हम लोग समझेंगे. तो ये वाला देख लीजिए. दिस इज रिमी. शी इज अ पिज्जा शॉप मैनेजर एंड शी हैज पिक्ड 2 लोकेशंस फॉर अ न्यू पिज्जा शॉप. तो रिमी चाहती है कि एक नया पिज्जा शॉप वो खोलेगी, तो उसके लिए रिमी ने दोनों लोकेशंस, ओके, शी हैज सीन. अब वो क्या करेगी? अब वो कंडक्ट करेगी एक मिनी स्टडी, ये डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा लोकेशन बेटर होगा न्यू शॉप खोलने के लिए, ठीक है ना. तो इसके लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स देखेगी. वो देख लो. एक लोकेशन है, लोकेशन ए, ये स्मॉलर, छोटा है, लेकिन देख सकती है कि आसपास में देयर इज अ हाई स्कूल, 2 blocks अवे देयर इज अ हाई स्कूल, और कुछ बिजनेस ऑफिसेस भी है और एक लॉन्ड्रोमार्ट भी है नेक्स्ट डोर. तो अगर स्कूल आसपास हो तो क्या होगा कि स्कूल के बच्चे टिफिन के लिए पिज्जा खाने आएंगे, या फिर स्कूल जब खत्म हो जाएगा तब पिज्जा खाने आएंगे. अगर बहुत सारे बिजनेस ऑफिस है तो फिर वहां पर भी ब्रेक होगा, वो भी निकल के पिज्जा खाएंगे, घर लौटने के वक्त पिज्जा खाएंगे, या फिर अपने बच्चे के लिए लेकर जाएंगे, फैमिली के लिए. और एक आपका हो गया एक लॉन्ड्रोमार्ट, मतलब ये कुछ लॉन्ड्री क्लोथिंग सॉर्ट ऑफ है. तो यहाँ पर भी लोग आएंगे, है ना. और लोग आके अगर उन लोगों को भूख लगे तो फिर अगर if they see that there is a pizza shop, then they can try the pizza. तो लोकेशन ए छोटा है लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस है. लोकेशन बी में क्या है? लोकेशन बी is larger and next to a supermarket with some business offices scattered around the area amidst several vacant lots. तो अब यहाँ पर लोकेशन बी में देख लो, यहाँ पर you know the space is a lot more than लोकेशन ए, लेकिन इसके पास में ही एक सुपर मार्केट है. तो अगर यहाँ पर एक सुपर मार्केट है तो सुपर मार्केट में तो हम लोग पिज्जा जो फूड कोर्ट जो होता है वो भी तो होता है ना. तो बहुत लोग तो सुपर मार्केट में शॉपिंग करके या फिर कुछ करके वहां पर ही पिज्जा खा सकते हैं. तो फिर वो नहीं आए, शायद ना आए पिज्जा शॉप में. और ज्यादा बिजनेस ऑफिस भी यहाँ पर नहीं है और बहुत सारी खाली जगह है यहाँ पर. देख लिया आपने इतने सारे फैक्टर्स. अब वो क्या करेगी? अब वो डेटा चेक करेगी प्लेस की. शी विल चेक द डेटा ऑफ दैट प्लेस
एग्जाम्पल अबाउट लाइट, वाटर, ऑल द थिंग्स, है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या पानी का प्रॉब्लम है या नहीं, ये सब वो चेक करेगी। उसके बाद ही वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पर उसको अपना शॉप लेना है। अब यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स। टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक होता है आपका डेटा, एक होता है आपका वेरिएबल्स। डेटा और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहले आ जाते हैं हम डेटा पे। A data is a set of collected numerical factors. Observable information is called a set of data. It can be collected in two forms, that is primary और secondary. तो डेटा का मतलब किसी भी चीज के बारे में जब आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो फिर हम उसको बोलेंगे अ सेट ऑफ डेटा, है ना। जैसे कि वी वेंट इनसाइड अ क्लासरूम, क्लासरूम में जाके हम लोगों को सारे बच्चों का हाइट चेक करना है ना। तो फिर आप लिख रहे हो नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, और फिर आप लिख रहे हो कि हाइट कितना है। तो हाइट भी आप लिख रहे हो, एज भी लिख रहे हो, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years ऐसे करके। तो ये आपका हो गया डेटा, ठीक है। तो आप इस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन, यू कैन फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन कि एवरेज हाइट कितना है बच्चों का, इस एज ग्रुप में एवरेज हाइट कितना है। तो ये इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डेटा। और हाइट, एज, ये सब तो हम लोग नंबर्स में कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। अब डेटा इट्स ऑफ टू टाइप्स, टू फॉर्म्स में आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डेटा। तो फिर चलो देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आप खुद अगर कहीं पर जाके वो कुछ कोई भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो फिर वो हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपको करना है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप खुद सारे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट करना है, तो फिर आप खुद उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर ये आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा, ठीक है। अब आता है आपका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, data collected by someone else for some other purpose but being utilized by the investigator for another purpose। मतलब ये जो सेकेंडरी डेटा है ये किसी और ने कलेक्ट किया है ये डेटा, और उन्होंने कलेक्ट किया है कोई और पर्पस के लिए, लेकिन वो अब रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मतलब वो अब हो गया आपका पास्ट रिकॉर्डेड डेटा। अब आप शायद इसको यूज कर रहे हो या फिर कोई और उस डेटा को यूज कर रहा है उस पास्ट रिकॉर्ड से निकाल के कोई और पर्पस के लिए, कोई दूसरा पर्पस के लिए, तो फिर हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या सोच सकते हैं कि सपोज आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट में आप लाइव वेदर रिकॉर्ड्स देख सकते हो, है ना, कि वेदर कैसा है अभी, एट दिस मोमेंट व्हाट इज द वेदर। तो वो आपका हो रहा है प्राइमरी डेटा। वो तो तभी लाइव हम लोग वो देख रहे हैं, वो डेटा तब लाइव कलेक्ट कर रहे हैं कि अभी वेदर रेनी है, स्टॉर्मी है, टर्ब्यूलेंट स्टॉर्म है, या फिर नॉर्मल सनी ब्राइट वेदर है। तो वो तब रिकॉर्ड हो रहा है, तभी हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो फिर वो हो गया आपका प्राइमरी डेटा। लेकिन जब हम उस डेटा को लेकर अब न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं वो डेटा कि वेदर कैसा था उस टाइम में, मतलब क्या हुआ, पास्ट रिकॉर्ड से हमने देखा कि इस टाइम में कैसा कैसा वेदर था। अब वहां पर क्या हुआ है, कुछ स्टैटिस्टिकली वहां पर कंपाइलेशन हुआ है, कुछ वहां पर मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ वहां पर एनालिसिस किया गया हुआ है उस रिकॉर्ड के ऊपर कि इस शायद 1 घंटा, वी हैड 1 hour, so in every minute we have recorded the changes in weather। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा बनाकर, मतलब वो पास्ट डेटा को लेकर उस प्राइमरी डेटा को लेकर हम देख रहे हैं कि ठीक है कैसा चेंज हुआ, तो फिर हम क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं कि 1 घंटे में वो वेदर कैसा था।
वो मोस्टली रेनी था या फिर मोस्टली ब्राइट था या फिर कैसा था, तो फिर वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। तो ऑलरेडी किसी और ने कोई डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो हो गया आपका प्राइमरी डेटा। उससे हम लोग कोई और व्यक्ति उसको यूज करे कुछ और पर्पस के लिए, तो फिर वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा मतलब क्या, जब आप अगर खुद जाके फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ इंफॉर्मेशन कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा। अब देख लो सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल, सेंसस डेटा बीइंग यूज्ड टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कैरियर चॉइस एंड अर्निंग, है ना। तो मतलब क्या, शायद गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कलेक्टेड सम डेटा पॉपुलेशन के ऊपर, कैसे, तो वो हो गया हम लोगों का प्राइमरी डेटा। गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है कि कौन कौन क्या कौन सा करियर किसने किसने चूज किया, और इस करियर के लिए ओके क्या एजुकेशन था, एजुकेशन, करियर और अर्निंग कितना हो रहा है ना। तो ये डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर कोई डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है। अब किसी और ने उस डेटा को निकाला, उस प्राइमरी डेटा को निकाला, अब वो बिल्कुल स्टडी कर रहा है, बिल्कुल एनालिसिस कर रहा है उस डेटा से कि अच्छा ये एजुकेशन था, ये करियर चॉइस था, तो फिर इसका अर्निंग इतना हो रहा है, इसका अर्निंग इतना हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के पास सिर्फ वो रॉ डेटा था कि ठीक है ये लोग है, ये उनका चोजन करियर है, ये है। तो गवर्नमेंट ने बस ऐसे ही डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कि सपोज आप सोच लीजिए कि शायद लिटरेसी रेट चेक करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने वो डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है ना, कि कौन कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को एजुकेशन मिल रहा है। लेकिन उस डेटा के ऊपर कोई एनालिसिस करके वहां से निकाल रहा है कि अच्छा इस कैरियर चॉइस की वजह से कितना अर्निंग हुआ, तो फिर ये हो गया आपका कोई डिफरेंट पर्पस, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। अब जैसे ही ये सारी डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद ही रिमी क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि विच प्लेस शी वांट टू ओपन हर शॉप। इसी को ही हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। ओके, so what is statistics? It is the method of conducting a study about a particular topic by collecting, organizing, interpreting and finally presenting data। मतलब हम लोग पहले बिल्कुल ही कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद फाइनली हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे। डेटा को प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, यू हैव लर्न राइट, हिस्टोग्राम, ऑल दीज थिंग्स, बार। तो इससे क्या होता है, टू स्टडी द डेटा या देखने में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होगा उसको हम एक साथ बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उनमें से हम तो वही निकालेंगे जिस इंफॉर्मेशन का हमको जरूरत है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस। एक होता है आपका सिंगुलर सेंस, एक होता है आपका प्लूरल सेंस। तो ये तो आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ये तो आप ग्रामर में तो पढ़े ही होंगे। तो सिंगुलर सेंस मतलब क्या, व्हेन यूज्ड एज सिंगुलर इट रेफर्स टू द होल सब्जेक्ट एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज which deals with statistical principles and methods used in collecting, analyzing and interpreting data। तो जब हम singular sense में बोल रहे हैं statistics मतलब this deals with the subject, बिल्कुल हम whole subject as a whole subject उसको रेफर कर रहे हैं कि अच्छा ये क्या क्या डील करता है, जो भी statistical principle method हमने यूज किया है, कलेक्ट किया है डेटा, एनालाइज किया है डेटा को, इंटरप्रेट किया है डेटा को। तो इसका मतलब सिंगुलर सेंस में बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। एग्जांपल देख लीजिए, I like to study statistics because it is used in day-to-day life। So here in this sentence I am talking about the whole subject statistics। I like to study statistics। The word statistics is used as a singular noun meaning the subject।
which deals with the collection, presentation, analysis of data, as well as drawing of meaningful conclusions from the data. ठीक है. अब प्लूरल सेंस में क्या होगा? प्लूरल में जब हम यूज करेंगे मतलब न्यूमेरिकल डेटा को वो बोल रहा है, जो नंबर्स जो है ना, द नंबर्स दैट वी हैव यूज्ड इन आवर डेटा, उसको रेफर कर रहा है. कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर विद सम डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन व्यू इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी. ठीक है. तो हमने कुछ न्यूमेरिकल डेटा वी हैव कलेक्टेड कुछ सिस्टमेटिक मैनर में, तब हम उसको बोलेंगे प्लूरल सेंस. Example, may I have the latest copy of educational statistics of India. तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्लूरल सेंस में एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, एजुकेशनल न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है. इसमें क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, लिटरेसी रेट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स. तो जब हम प्लूरल में स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे तो फिर हम लोग वो न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब वो आपका हो सकता है नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, और इट कैन ऑल्सो बी अबाउट द लिटरेसी रेट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स. ठीक है. तो ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म. अब हम देखेंगे द मेजर स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्लेन्ड इन अ सिंपलिस्टिक फॉर्म एज फॉलोज. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? नंबर 1, प्लानिंग अ स्टडी. तो सबसे पहले तो आपको प्लान करना चाहिए कि अच्छा इस पर्टिकुलर हमारा यही टॉपिक है, यही सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे. जैसे कि रिमी कर रही थी कि एक पिज्जा शॉप खोलना है, दोनों लोकेशन है उसके पास, तो अब तो उसको स्टडी करना है ना, स्टडी को प्लान करना है. फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. द बेस्ट वे टू ऑब्टेन द वैलिड आंसर्स इज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू हेल्प एक्सपोज पैटर्न्स एंड अदर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स. जैसे कि रिमी कर रही थी, क्या क्या डेटा कलेक्ट करेगी कि लोकेशन कैसा है, आसपास क्या है, लाइट कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वाटर प्रॉब्लम है कि नहीं. तो हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरह से. पहले इसको तो ऑर्गेनाइज करना है कि अच्छा लोकेशन ए में ये एडवांटेज है, लोकेशन बी में ये एडवांटेज है, लोकेशन ए में ये डिसएडवांटेजेस हो गया, लोकेशन बी में ये डिसएडवांटेजेस हो गया. ऐसे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. अब हम करेंगे इंटरप्रिटेशन, मतलब दिस इज द हार्ट बीट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Interpretations can have lasting repercussions, and it's important to make sure they are valid assumptions and supported by mathematical reasoning. अब हम करेंगे डेटा को इंटरप्रेट, मतलब डेटा को हम अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करके उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि इस डेटा, जो भी हमारे पास डेटा है, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं, है ना. और इसके लिए जो भी आप assumptions आप जो भी करोगे वो वैलिड assumptions होना चाहिए, और कोई मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ उसको सपोर्ट करना है. अब देख लो, अब हम करेंगे डेटा को प्रेजेंट. तो डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं? द मेथड्स यू चोज टू प्रेजेंट द डेटा कैन मेक फाइंडिंग्स मोर इंटरेस्टिंग और पावरफुल. पीपल यूज ग्राफ्स, टेबल्स एंड वेरियस डायग्राम्स टू शो रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा. अब कैसे डेटा को प्रेजेंट करो? अब एक पेज में अगर आप बस ऐसे ही लिख दो तो वैसे करके तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब स्टडी करोगे तो फिर वो इजी होना चाहिए देखने में. तो आप उसको टेबल फॉर्म में लाओ, आप उसको कोई ग्राफ के फॉर्म में लाओ, और फिर रिलेशनशिप करो डेटा के अंदर, तो फिर आप देखोगे कि वो बहुत इजी हो जाएगा. जैसे कि आप टेक्स्ट बुक्स में कुछ देखते हो, जैसे कि विटामिन ए बी सी एंड द फूड्स दैट गिव अस विटामिन ए बी सी, ओके, लाइक दैट. तो अगर वो आप ऐसे लाइन बाय लाइन करोगे तो फिर आपको याद नहीं होगा. लेकिन जब अब उसको कोई टैब्यूलर फॉर्म में लाओगे, टेबल के फॉर्म में लाओगे, तो फिर आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी आप मेमोराइज कर सकते हो. इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम देखेंगे डेटा सेट. डेटा सेट के अंदर आता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, responses, measurements or counts that are of interest. Sample means a subset of the population. अब चलिए आप एक एग्जाम्पल सुन लीजिए. शायद एक यूनिवर्सिटी है. अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा. तो फिर अगर हमको चाहिए यूनिवर्सिटी का पॉपुलेशन, तो फिर
नॉट ओनली द स्टूडेंट्स हु आर ऑन कैंपस। आप यूनिवर्सिटी में घुस गए और आप काउंट कर रहे हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स है कैंपस, सिर्फ इतना करके तो आप पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ आपका है पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स घर पे है, कुछ स्टूडेंट्स डिस्टेंस एजुकेशन कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड है. So you have to consider all those students as well, not only the students on the campus but also the students who are studying abroad, those who are part-time students, those who are doing distance education. In fact there can be some students जिन्होंने शायद ये कोई यूनिवर्सिटी है तो 12th उन्होंने पास कर लिया, अब वो वेटिंग फेज में है, अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी में, अब वो वेटिंग फेज में है कि कब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा. तो उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करना है, किसी को भी छोड़ना ही नहीं है, वो होगा आपका पॉपुलेशन. तो ये तो बहुत हार्ड भी है ना, कि सबको ऐसे ढूंढ ढूंढ के, इट इज टफ, पॉपुलेशन निकालना टफ होता है. सैंपल मतलब क्या, अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, आप कोई पॉपुलेशन का पार्ट. अब आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में घुस के कैंटीन में चले गए, कैंटीन में सोच लो 20 या फिर 30 बच्चे खा रहे हैं, उन 30 बच्चों को आपने देख लिया, उनको स्टडी कर लिया, उनका इंफॉर्मेशन आपने निकाल लिया. उसका मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन था एंटायर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दोस ऑल द स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग अ पार्ट, अ सैंपल, तो वो हो जाएगा आपका सैंपल. ठीक है, क्लियर है. चलो, आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज पॉपुलेशन और स्टेटमेंट. अब देखो, अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड टू टेस्ट अ न्यू टीचिंग टेक्निक, तो फिर ये आपका हो जाएगा सैंपल. क्यों, क्योंकि सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं यहाँ पर, not all the students, there are other students as well, but we have chosen 25 students to test a new teaching technique, so this will be a sample. The total machines produced by workers in a factory, up total machines, different types of machines, different sizes of machines. Some machines maybe are defective, some machines are working great, some machines have been sold, some new machines have been bought, so lots of data to collect. तो ये आपका हो जाएगा population, ये हो जाएगा आपका population. और आप थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, the yearly expenditure on food for 10 families. सिर्फ हम ये इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 फैमिलीज के लिए है ना, सारे फैमिलीज के लिए नहीं, सिर्फ 10 फैमिलीज के लिए. तो फिर ये आपका हो जाएगा सैंपल, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑल द फैमिलीज, वी आर कंसिडरिंग ओनली 10 फैमिलीज. ओके, तो फिर थर्ड वन विल ऑल्सो बी अ सैंपल. अब आपका क्वेश्चन है कि कैन यू डिफाइन अ वेरिएबल. ओके, चलिए वेरिएबल क्या है देख लेते हैं. Observable characteristics or phenomena of a person or object whereby the members of the group are said vary from one another. A quantity which can vary from one individual to another. अब देख लो, सोच समझ लो, वेरिएबल मतलब जैसे कि हाइट्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो अब ये हाइट्स तो वैरी करेगा ना, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल द हाइट्स विल वैरी. तो ये आपका हो गया वेरिएबल, हाइट हो गया आपका वेरिएबल, क्योंकि सब लोगों का हाइट सेम नहीं होगा. वेट भी आपका होगा वेरिएबल, है ना. इनफैक्ट मार्क्स भी आप बोल सकते हो वेरिएबल, क्योंकि मार्क्स भी सब लोगों का सेम नहीं होगा. अब वेरिएबल्स के अंदर में है एक कंटिन्यूअस वेरिएबल, अ वेरिएबल व्हिच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज. अब किसी भी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू को ले सकता है, जैसे कि हाइट्स ऑफ चिल्ड्रन ही देख लो, तो हाइट में सपोज एक हो जाएगा आपका 3.4 फीट, 3.5 फीट, 3.6 फीट. सो बिटवीन 3 to 4 अगर हम देख लेंगे ये रेंज को, बिटवीन 3 फीट टू 4 फीट, तो सारे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को वो ले सकता है, वो वेरिएबल हाइट. It can be 3.1, it can be 3.2, it can be 3.3, it can be 3.4, it can be 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 up to 4. तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल दैट वी आर कंसिडरिंग अ रेंज 3 to 4, उसके अंदर किसी भी वैल्यू को वो ले सकता है, तो फिर वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल. और एक एग्जांपल आपका होगा रेनफॉल रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑन डिफरेंट डेज, राइट. Rainfall records of different cities on different days. But what about discrete variable? A variable which is incapable of taking all the possible numerical values. मतलब सारे numerical values वो नहीं ले सकता, उसको हम बोलेंगे discrete variables.
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक बच्चा हो सकता है, दो बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे, लेकिन इसके बिटवीन आप ये नहीं कह सकते कि देयर आर 1.5 चिल्ड्रन, ये तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि आधा या फिर कोई हाफ चिल्ड्रन, ये भी आप नहीं बोल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यू हैव टू कांट टेक ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 4 5, 1 से 5 अगर रेंज देखेंगे तो फिर 1 2 और मे बी 3 4 5, लेकिन 3.4 3.5 2.5 ये सब नहीं चलेगा। तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आ रहा है डेटा का रिप्रेजेंटेशन, एक होता है रॉ डेटा, एक होता है एरेड डेटा। तो रॉ डेटा का मतलब क्या है देख लीजिए, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, 55 36 ऐसे करके बहुत सारे मार्क्स दिया हुआ है, ये हो गया आपका रॉ डेटा। बिल्कुल ही आपने देख लिया किस किस स्टूडेंट ने कितना कितना मार्क्स उनको मिला है, नोटबुक में आप लोग लिख रहे हो, बस वो हो गया आपका रॉ डेटा। अब लेकिन अब आप इससे मैं पूछ रही हूँ कि बताइए इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, लोएस्ट मार्क्स कितना है, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि अरे इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, लोएस्ट मार्क्स कितना है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इस मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले तो फिर आप तो एक सेकेंड में बता सकते हैं कि लोएस्ट मार्क्स कितना होगा और हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा। लोएस्ट विल बी 25, हाईएस्ट विल बी 95। So when we are arranging the raw data, it is faster and it is easier, right? तो ये हम लोगों का हो जाएगा arrayed data, मतलब हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं। tabulation of data, representing the data in the form of table, मतलब हम टेबल के फॉर्म में जब डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। Consider 15 children from 3 families A, B, C. Family A has 5 children, out of which 3 are boys, 2 are girls. Family B has 4 children, out of which 1 is boy and 3 are girls. Family C has 6 children, out of which 4 are boys and 2 are girls. अब हम इसको टेबल में लिख रहे हैं। फैमिली ए में नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल, फैमिली बी में नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल, फैमिली सी में नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल, है ना। तो जब आप ऐसे लिख लोगे आंसर को तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। टू स्टडी इट ऑल्सो इट विल बिकम अ लॉट मोर इजियर। अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। बहुत सारे जगह पर स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होता है। एक तो होता है आपका गवर्नमेंट एजेंसीज में। कैसे? द गवर्नमेंट यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू मेक डिसीजंस अबाउट पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे चीजों के स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। जैसे कि रिजल्ट निकालने के बाद, ये बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट निकलता है तो फिर गवर्नमेंट बोलता है ना कि इतने सारे परसेंटेज फेल्ड, इतने सारे परसेंटेज पास्ड, उनमें से कितने सारे गर्ल्स, हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स, हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज। तो ये सब तो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से ही निकालते हैं गवर्नमेंट। It may conduct research on education to check the progress of high school students using a specific curriculum or collect characteristic information about the population using the census. Population के बारे में भी वो जान सकता है कि कितना आपका मेल है, कितना फीमेल है, ये सब। Teachers are encouraged to be researchers in their classrooms to see what teaching methods work on which students अंडरस्टैंड एंड वाई। एडुकेशन में भी यूज होता है, मतलब टीचर्स को बोला जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इसको समझाने के लिए। अब आप देख लीजिए कि कौन से एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स बेटर रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ में आ रहा है, कि ज्यादा स्टूडेंट्स को कौन सा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया एडुकेशन में भी स्टैटिस्टिक्स। अब आता है लार्ज कंपनीज। Every large company employs its own statistical research divisions or firms to research issues related to products, employees, customer service. Business success relies on knowing what is working and what isn't. बड़े बड़े कंपनीज में भी देखता है कि कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा सेल हुआ, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हुआ, कौन से प्रोडक्ट में रिटर्न्स ज्यादा आए, मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स
अट्रैक्ट कर रहा है, सेलर्स खरीद रहे हैं, लेकिन फिर वो काम नहीं कर रहा है, उसके बाद वो रिटर्न आ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, आइदर दे विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट प्रोडक्ट, ओके, दे विल फोकस मोर ऑन दैट प्रोडक्ट, लाइक दैट, और फिर आपका हो सकता है कि शायद किसी प्रोडक्ट, फीडबैक, फीडबैक जब आप देखते हो, रिव्यूज, का रिव्यूज के ऊपर भी रिसर्च करता है कंपनी कि कौन से प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब हमको उस प्रोडक्ट को ज्यादा, उसको मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा उसको सेल करेंगे क्योंकि वो ज्यादा सेल हो रहा है, और कौन से प्रोडक्ट्स में नेगेटिव रिव्यूज है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा वो लोग काम करेंगे, है ना। These are all the applications of statistics. Based on the data collected, 85% of plant life is found in the ocean. मतलब ओशन में 85% प्लांट लाइफ है, ओके, लैंड में तो ज्यादा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट लाइफ इज प्रेजेंट इन द ओशन. So here we come to our end of statistics part 1. तो हमने क्या क्या सीखा, डेटा का डेफिनेशन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रॉ डेटा, फिर एरेड डेटा, टेबुलर फॉर्म में जो भी डेटा था वो देखा, फिर पॉपुलेशन, सैंपल, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, statistics once used in singular sense and used in plural sense. Okay, thank you so much for watching this session. If you have any doubt, write down your doubts in the comment section so that I can help you. And those who are new to this channel, make sure to subscribe to this channel, hit on the bell icon so that you never miss any update with us. Also share this video among your friends and family, family members, relatives, ताकि बहुत सारे बच्चों को help हो जाए, क्योंकि ये तो चैप्टर में ये सारे definitions you will be getting in your maths test as well. Okay, share it. Let's all come together and learn together. Thank you so much. Tata, goodbye. Take care. See you soon.